Sensational statement by the chief of Dargah Ajmer Sharif. Dargah chief suggests resolve Mathura and Kashi through dialogue and mutual consent. तमाम हिंदू और मुसलमान समाज की संस्थाओं से अपील करता हूं कि काशी और मथुरा जैसे मसलों का हल अदालतों के बाहर मिलजुल कर निकालने का प्रयास करें. Hindu Mahasabha welcomes the move. यह बहुत ही अच्छी विषय है कि जिस प्रकार से ऑल इंडिया सूफी काउंसिल ने पहल किया है. Muslim cleric slams the Dargah chief's proposal. ये जब भी आप बैठेंगे ये सिर्फ ये कहेंगे कि मथुरा काशी हमें दे दो, ये हमारी आस्था का केंद्र है, तो आप क्या ऐसे आदमी के साथ बैठने को गवारा करोगे जो आपकी बात ही ना सुने? Can Mathura and Kashi be resolved through dialogue outside courts of law? That's our top focus on India First. The Dargah Ajmer Sharif is considered to be amongst the holiest Muslim shrines in India. Khwaja Muinuddin Chishti, the Sufi shrine enshrined there, and the chief of this Dargah is suggesting dialogue to resolve the disputes both at the Sri Krishna Janmabhoomi at Mathura and the Kashi Vishwanath temple at Varanasi, that Gyanvapi dispute. But this route clearly didn't work in Ayodhya, and a Supreme Court order was acceptable to all. Can and should dialogue be tried once again for Mathura and Kashi, or should all stakeholders wait for courts of law to resolve this dispute? We debate. I'm Gaurav Sawant. As always, let's get started with the headlines on India First. Prime Minister Narendra Modi hits out at Rahul Gandhi for his drunk Varanasi youth remark. Says Rahul Gandhi abused the youth of Uttar Pradesh and this exposes his frustration. Rahul Gandhi hits back, claims Prime Minister Modi is misleading the youth. जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं. Trinamool Congress seat sharing deadlock continues. Sources say TMC likely to go solo in Bengal and in Assam. No seat sharing talks between Congress and TMC held in the past several weeks now. Sandesh Khali showdown escalates. BJP Mahila delegation stopped from meeting survivors. BJP MP Lokit Chatterjee detained, later released. TMC Neta's house targeted. Big showdown in Karnataka Assembly. Chief Minister Siddaramaiah accuses the centre of stalling state funds. BJP hits back, says allegations are false and politically motivated. National Security Act against farmer leaders revoked. Haryana police urged protesters to maintain peace. Fresh clashes at the Khannori border reported. The Diwan of the Dargah Ajmer Sharif, Sayyid Zainul Abidin, has suggested dialogue to find an amicable and respectable resolution for all sides, both in the Mathura and the Kashi disputes. The Hindus believe Mathura is Sri Krishna Janmabhoomi, where Mughal Emperor Aurangzeb ordered the demolition of the Sri Krishna Janmabhoomi temple and the construction of the Eidgah. Aurangzeb's Farman also ordered the demolition of the Kashi Vishwanath temple and the construction of a mosque there. Can a solution be found outside courts of law through dialogue? What are various stakeholders saying? Let's listen in. मैं आज अजमेर दरगाह के संजय जी और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की औलाद होने के नाते
तमाम हिंदू और मुसलमान समाज की संस्थाओं से अपील करता हूं कि काशी और मथुरा जैसे मसलों का हल अदालतों के बाहर मिलजुल कर निकालने का प्रयास करें। इस धार्मिक और अति संवेदनशील मसले का हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष एक सम्मान पूर्वक हल निकालने और हमेशा के लिए भारत में धार्मिक विवादों का अंत कर इस देश की उन्नति में अपना योगदान और सहयोग प्रदान करेंगे। यह बहुत ही अच्छी विषय है कि जिस प्रकार से ऑल इंडिया सूफी काउंसिल ने पहल किया है कि ज्ञानवापी और मथुरा की मामला जो है उसको कोर्ट से बाहर सुलझाने की जो पेशकश की गई है बिल्कुल होनी चाहिए। यह देश हम सबका है। कोई कटुता, किसी प्रकार का कोई बैर, कोई गैर नहीं होना चाहिए। अजमेर शरीफ के दीवान के इन विचारों का स्वागत करते हैं। काशी संवाद की नगरी है, विवाद की नहीं। उस समय भी मुस्लिम उलेमा और हिंदू धर्मगुरु में जो वार्ता होती थी वह सफल नहीं हो पाता था। जो है वर्षों तक चला, समय बर्बाद हुआ और आज पुनः हम ये प्रयास ये कर रहे हैं कि अगर वास्तव में ये हो रहा है, वार्ता का क्रम चल रहा है तो स्वागत योग्य है। 1992 में जिस बर्बरता के साथ बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और फिर बाद में जो कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता करो और आपस में बैठकर मामला सुलझाओ, तो इनका एक सूत्री फार्मूला था कि बाबरी मस्जिद हमें दे दो। कैसे बात करेंगे आप? यहां भी यही सेम पोजीशन है। ये जब भी आप बैठेंगे ये सिर्फ ये कहेंगे कि मथुरा काशी हमें दे दो, ये हमारी आस्था का केंद्र है। So you heard Sohanlal Arya is the petitioner in the Kashi Vishwanath case. He says काशी संवाद की नगरी है, विवाद की नहीं। Kashi is the land of dialogue, not dispute. Can an amicable resolution actually be found either at Kashi or at Mathura, or both Kashi and Mathura? But there's another very interesting aspect to what the Dargah Ajmer Sharif chief said. He attempted to set the record straight on the Citizenship Amendment Act. Remember those Shaheen Bagh protests? Well, he tried to set the record straight, insisting there is no discrimination against Indian Muslims in the Citizenship Amendment Act. He sought to clarify that this act, Citizenship Amendment Act, only seeks to provide relief to Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists and Christian refugees in this region seeking relief in India. Listen in. पिछले कुछ सालों से मुसलमानों को गुमराह किया गया और डराया गया कि CAA कानून में भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने की कोशिश हो रही है, जबकि वास्तविकता और है। अधिनियम के प्रावधानों के विस्तृत विश्लेषण के बाद हमने पाया कि कानून का भारतीय मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है और यह उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सताए हुए अल्पसंख्यक अप्रवासी को लाभ पहुंचाएगा जो भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं। उन लोगों के लिए, ना कि भारतीय मुसलमानों के लिए। But is an attempt actually being made to find a resolution through dialogue to this dispute? Remember last year, even Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath had said that the signs on the walls of the Gyanvapi Parisar in Kashi, those signs that have now been revealed even through the Archaeological Survey of India report, they're enough to prove that the mosque was actually built over ruins of a temple. There is, of course, ample evidence to say that the temples were destroyed and mosques constructed on the orders of that bigoted Mughal emperor Aurangzeb. In fact, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath appealed to the Muslim community to accept that a historical mistake had been made, to ensure that corrections are made, and proposed the dialogue route. Listen in. आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है,
और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। एक ऐतिहासिक गलती हुई है, अब उस भूल का क्या सुधार संभव है? अ मिस्टेक वॉज मेड, इज करेक्शन पॉसिबल? Ayodhya was a difficult dispute. The dialogue route was attempted. Sadly, it did not succeed. Ultimately, Hindus sought and got justice from the Supreme Court of India. Can Kashi and Mathura be different? Joining me on India First is Maulana Sajid Rashidi. He's the president of the All India Imam Association. Vinod Bansal is the national spokesperson for the Vishwa Hindu Parishad. And for a legal perspective, we will cut across to Advocate Mani Munjal. But I first want to quickly bring into this conversation the Maulana Sajid Rashidi. Why is a dialogue route not possible to find a resolution for Kashi and for Mathura, sir? देखिए, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है। डायलॉग का मतलब होता है गिव एंड टेक, कुछ दे दो कुछ ले लो, 2 कदम पीछे तुम हट जाओ, 2 कदम पीछे हम हट जाए। अगर सामने वाला ये कहे कि ये हमें दे दो, तो इस पर बैठने की कोई बात नहीं हो सकती ना। ये तो चीख चीख कर कह रहे हैं इस बात को। अभी आपने सीएम योगी को सुना कि वो दीवारें चीख चीख कर कह रही हो तो मंदिर था। ये ऐतिहासिक गलती नहीं है, ये ऐतिहासिक झूठ है। जैसे बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इनके झूठ का भांडा फोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का आदेश दिया। आप अपने तकरीर में बरगलाना छोड़ दीजिए मुसलमानों को। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अयोध्या पे निर्णय आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई मौलाना तो बैठेगा नहीं अब। बिल्कुल नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब बातचीत चल रही है आगे की बात है अयोध्या, मथुरा और काशी। आप कह रहे हैं गिव एंड टेक होना चाहिए। आप क्या गिव एंड टेक चाहते हैं? फिर चलिए आपसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहीं संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो जाए उस पर आप आदमी बात नहीं कर सकता? नहीं, तो आप उसके अपील संविधान में है, आप उसके अपील में जाइए, कोर्ट के आदेश के अपील में जाइए अगर आप जाना चाहें। अपील की बात ही नहीं, मैं अपील की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप बस बरगलाना चाहते हैं भारत के मुसलमानों को। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। इस झूठ का पर्दाफाश किया सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए, यही झूठ जो ज्ञानवापी में बोला जा रहा है, नहीं, ज्ञानवापी में झूठ बोला जा रहा है, आप तो नहीं तय करेंगे, ये अदालत भारत की तय करेगी। विनोद बंसल आपको उत्तर देना चाहते हैं। विनोद बंसल आपको उत्तर देना चाहते हैं। इतिहास में ये मस्जिद अकबर से भी पुरानी है, औरंगजेब तो बहुत बाद में आया है। विनोद बंसल आपको उत्तर देना चाहते हैं, फिर मैं मनी मुंजाल जी से भी को भी बुलाऊंगा। मिस्टर बंसल, is the VHP open to dialogue route to find a resolution for Mathura and Kashi? या फिर अगर मौलाना साहब का इस तरह का रवैया है तो डायलॉग तो हो ही नहीं सकता, इट विल बी अ डायलॉग ऑफ द डेफ। गौरव जी, मैं कहता हूं, देखिए, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन वो पहला डायलॉग किसके साथ होना चाहिए? सूफी जो अपने चिश्ती साहब हैं उनको बोलना चाहिए, पहले मौलाना साहब के साथ वो डायलॉग कर लें, पहले वो मस्जिद कमेटी के साथ डायलॉग कर दें। वो जो कट्टरपंथी इस्लाम जो है भारत का, उसके साथ पहले डायलॉग करके उसको पहले सूफियत की तरफ ले आए, तब तो मुझे लगता है किसी और के साथ डायलॉग करने का फायदा है। अदरवाइज क्या है कि उनकी खुद की औकात नहीं है इनके सामने। मस्जिद बचाने के लिए मैं कट्टरपंथी हूँ, तो लेकिन मैं कहता हूं कट्टरपंथी मस्जिद बचाने के लिए। बिल्कुल मैं भी कह रहा हूं, मस्जिद तो आपने बचा नहीं पाई, लेकिन हाँ, मुसलमानों को जरूर। मैं आतंकवादी नहीं हूँ, कट्टरपंथी हूँ मस्जिद बचाने के लिए। मैं कहता हूँ आप कट्टरपंथी हैं, आप मस्जिद तो नहीं बचा पाएंगे। बोले आप कितनी बार बोलेंगे? 100 बार बोलिए मुझे कट्टरपंथी। आप मुसलमानों को जरूर आतंकवाद की राह पर झोंक देंगे। अगर हम मस्जिद की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है, मुझे पता है। अगर हम मस्जिद की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है। मौलाना साहब एक बार विनोद जी अपनी बात रख ले। मौलाना साहब, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। लेट मिस्टर बंसल कंप्लीट हिज पॉइंट, सर। आई विल कम बैक टू यू। देखिए, इनसे बोले कि कोई गलत बात ना बोले। ये देखो, ये कट्टरपंथी क्या होता है? ये देखो फिर बीच में बोल गए। ये नहीं बोलना, कट्टरपंथी क्या होता है? डायलॉग की बात हो रही है, बात हो रही है, डिबेट है, कोई लड़ाई थोड़ी है। किसी को करने देंगे। गौरव जी, यही तो इनका एजेंडा है बेसिकली। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे भी नहीं और सुप्रीम कोर्ट को कोसेंगे भी, और फिर उसके बाद में संविधान की बात करेंगे ये कि हम संविधान को मानते हैं। आप मुझे बताइए, अगर संविधान को मानते हैं तो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को जो कोर्ट को मिली है उनको भी तो मानोगे आप?
मैं कहता हूँ हमें डायलॉग की आवश्यकता नहीं है, मैं बड़ा क्लियर कहता हूँ। अब जो डायलॉग की बात थी हो चुकी, अयोध्या मथुरा काशी के लिए 1983 में जो संतों ने संकल्प लिया था जी, हमने कहा था कि बातचीत कर लीजिए, और देखिए अपने अयोध्या वाले मामले में कितनी बार बातचीत का दौरा चला, लेकिन 2-4 बातें तो हुई, उसके बाद में भागते नजर आए, कोई रुका ही नहीं। तो लेट मी गेट मनी मुंजाल इनटू दिस कॉन्वर्सेशन। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनी मुंजाल, विल द डायलॉग रूट work? Will it be legally acceptable? You've in a way heard both sides of the story. Is the dialogue route possible, ma'am? Gaurav ji, before that, I would just like to clarify one thing. Initially, you displayed a statement made by Sohan Lal Arya ji as petitioner of the Gyanvapi case, which is not true. He is not the petitioner, whereas all the plaintiffs, 5 plaintiffs, strongly disagree with any kind of compromise taking place. That is number one. Number two, as I stated, we do not think that any kind of dialogue or compromise is possible, primarily because the law creates an embargo under Order 23, where it says that until a leave of court is obtained, we cannot go into a compromise. And number two, who are we to enter into a compromise when it is not our property? It is the property of the deity that has been vested since time immemorial. Absolutely, and absolutely. Ample number of times stated, once the property is vested in the deity, it will forever remain with the deity. Okay. So who are we to enter into a compromise? Okay. No, but nobody is asking for a compromise. The thing is work towards a dialogue. Is a dialogue possible to move forward? Even a dialogue is not possible. There was a similar situation that arose during the Ayodhya dispute, where the court said that you can enter into a mediation, have a dialogue and see if something can be done about it. Okay. At that time, my senior Harishankar Jain ji made one statement that I'm going to say it in front of you. He said, "Zameen ka sauda ho sakta hai, zameer ka nahi. I can maybe compromise on the land, but I will never compromise on my conscience. Okay. And this is about my dharma. I will never let go of even a single inch of land." Same position हमारी भी है। नहीं, लेकिन आपकी सेम पोजीशन है मौलाना साहब, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं। नहीं, मैं आपसे समझना चाहता हूं। जमीन का सौदा नहीं कर सकते। आपसे जमीन का सौदा की तो बात ही नहीं है। आप मुझे ये समझाइए। जमीन सुनिए, ना जमीन का कर सकते हैं ना जमीन का कर सकते हैं। जमीन हम किसी का भी नहीं कर सकते। सुनिए, ये जमीन का कर सकते हैं, हम जमीन का भी नहीं कर सकते। ये आप मुझे ये बताइए, मथुरा में योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहीं पर औरंगजेब ने वो मंदिर गिरा के मस्जिद बनवाई, इसके साक्ष्य मौजूद है। आप मुझे ये बताइए, हिंदुओं के लिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बहुत ही उनके इष्ट है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी जमीन है, शुभ जमीन है। आपके लिए उस जमीन का क्या महत्व है? आपके लिए मक्का मदीना का महत्व हो सकता है, आपके लिए मथुरा और काशी का क्या महत्व है? इस्लामिक आस्था में मस्जिद जहां एक बार बन जाती है वो कयामत तक मस्जिद रहती है। लेकिन वो मस्जिद अगर मंदिर तोड़कर बनाई गई है तो वो मस्जिद नहीं हो सकती। वो मनु मुंजाल आपको कानूनी प्रक्रिया बताएंगे, तो आप ही का धर्म कहता है। देखिए मैंने पहले भी कहा, बाबरी मस्जिद के झूठ को सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया। आप बाबरी मस्जिद का मसला छोड़ दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटल कर दिया। अब आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहुत इसको भी सेटल होने दो। उसका मतलब ये ठीक है, ये कह रहे हैं मौलाना साहब, ये मौलाना कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से ही सेटल होने दो। अब ये कोर्ट ही सेटल करेगा। ये मौलाना, ये इनके जैसे मौलाना उनको सेटल नहीं होने देंगे। अरे भाई साहब, ये डायलॉग तो इनके दिमाग में है। विनोद जी, उस समय मौलाना साहब जब बोल रहे थे तो मैंने उनको भी रोका था। आपसे भी निवेदन कि अब मौलाना साहब को सुन लेते हैं। गो ऑन मौलाना साहब। अभी जो विनोद जी ने संविधान की दुहाई दी है कि हम संविधान को मानते हैं, ये कितना संविधान को मानते हैं? कोर्ट में केस था बाबरी मस्जिद का और 92 में तोड़ दी इन्होंने मस्जिद। ये इतना संविधान को मानते हैं। मस्जिद का ढांचा टूटा था, मस्जिद का ढांचा टूटा था, लेकिन आप बार बार बाबरी पर जा रहे हैं कि आपके तथ्य मतलब कमजोर है। यू आर वीक ऑन फैक्ट्स व्हेन इट कम्स टू मथुरा एंड काशी। आप पत्रकार है, you are weak on facts. That's my question to you. Manu Munjal, I would like you to state facts, madam. Facts as far as, let's take it one by one. फैक्ट ये है कि वो मस्जिद अकबर से भी पुरानी है। अकबर के जमाने में भी किस किताब में लिखा है? क्या फैक्ट है? किस आधार पर? मैं आपको आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया कि वो अकबर से पुरानी मस्जिद है? आप दोबारा डिबेट रखिए, मैं 10 किताबें लेके बैठूंगा। नहीं गौरव जी, इनको
इनके प्रूफ यहाँ पे नहीं चलेंगे, कोर्ट में जाए, इनको बोलो कोर्ट में जाए। ये अयोध्या वाले केस में भी कोर्ट में नहीं गए थे और अभी काशी मथुरा में कोर्ट में नहीं गए। अरे कृपया कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, मनी जी मिलेंगी आपको, उनको दिखाइए कोर्ट में जाकर के, हमें दिखाने से कोई फायदा नहीं है। कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए थे, जो बोला था आपको। जो यहाँ पर डायलॉग चले गए, अदालत के बाहर डायलॉग करने के लिए कैसे मानेंगे? कोई चांस ही नहीं है कि इस जमीन के हम भी नहीं कह रहे हैं डायलॉग के लिए। हाँ, तो हम भी नहीं कह रहे। आप आइए कोर्ट में, मना कर रहे हैं डायलॉग के लिए। अपने एविडेंसेस दीजिए और प्रूव करिए कि आपका इस पे पोजेशन है, आपका इस पे ओनरशिप है। हम तो यही कर रहे हैं, हम अपना एविडेंस सामने रखना है। आपने एएसआई की रिपोर्ट तो देखी होगी कि काशी में कितने हमको विष्णु जी के, कृष्ण जी की कितनी मूर्तियां मिली हैं, कितने इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जहां पे ये लिखा है कि वो मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया था। आपके क्या साक्ष्य हैं? आपने क्या रखा सामने? आप कह रहे बाबरी मस्जिद में भी एएसआई की रिपोर्ट, फिर बाबरी मस्जिद पर पहुंच गए। बाबरी मस्जिद में भी एएसआई की मैं रिपोर्ट बहुत आई थी, स्पेसिफिकली मथुरा और काशी पर बात कर रहा हूं। आज की चर्चा मथुरा और काशी पर है। इसका मतलब मौलाना साहब आपके पास तथ्य मथुरा और काशी पर नहीं है। गौरव भाई देखिए, जो पिछले एविडेंस होते हैं उन्हीं पर बात करता है। बात तो मथुरा और काशी के एविडेंस बताइए ना सर। काशी के एविडेंस 1930 का दीन मोहम्मद का जजमेंट है। हाँ, क्या है? आप पब्लिक डोमेन में मौजूद है। क्या है? 1930 में दीन मोहम्मद के जजमेंट ने बाकायदा उस वक्त के जज ने ये कहा कि ये मस्जिद वक्फ हनफी की है, इसमें 5 वक्त की नमाज होती है और इसके बराबर में एक मजार भी है जहां बाकायदा मेला लगता है, उर्स होता है। ये 1930 में कोई कानूनी दस्तावेज मनु मुंजाल फिर, क्योंकि पेटिशनर साइड से है, आप दीन मोहम्मद के केस को कानूनी दस्तावेज नहीं मान रहे? नहीं, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए ना। वो तो तत्कालीन जज का फैसला है। प्रूफ ऑफ लैंड ओनरशिप आप नहीं दे पाए थे। प्रूफ ऑफ ओनरशिप मनु मुंजाल, फैक्चुअल पोजीशन मैडम। दीन मोहम्मद is not applicable on our present case. The case that happened at that time, that was not, the Hindus were not even made a party to it. आपने सर्वे से पहले कह दिया शिवलिंग मिल गया, शिवलिंग मिल गया, ये एप्लीकेबल है। मैं बोलूं रशीद जी, आपसे विनती है, 2 मिनट दीजिए। Let me clarify. The 40+ witnesses who were in Deen Mohammed case clearly stated that there existed a mandir. They used to do continuous puja. How can we let go of our land, our deity's land? Very good. सर, फैक्चुअल पोजीशन ये है, दीन मोहम्मद के केस में कौन से पैराग्राफ में लिखा है कि ये मंदिर है? बताइए आप मुझे, कौन से पैराग्राफ में लिखा है? विनोद बंसल जी, गौरव जी 1 मिनट। दीन मोहम्मद के केस में कौन से पैराग्राफ में लिखा है कि ये मंदिर है? 17 बताएंगे मुंजाल जी, कौन से पैराग्राफ में लिखा है? मेरे पास है जजमेंट, बताइए कौन से पैराग्राफ में है? हमने तो कोर्ट में भी दिखाया। आप पैराग्राफ बताइए ना, ये इशू सेटल हो चुका है। यही तो बात है पैराग्राफ बताइए आप। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर जब आप डिबेट करते हैं तो आप तथ्यों पर नहीं आ पाते। विनोद बंसल जी, पर आ रहा हूँ। देखिए वकील साहब को कैसे चुप हो गए। नहीं, वकील साहब चुप नहीं, पैराग्राफ बताइए। वकील साहब आपको उत्तर देना चाहते हैं, मुझे बताइए पैराग्राफ। आप चुप नहीं होंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? ओनली मनु मुंजाल जी, Gaurav ji, can you repeat your question? My question very clearly is, if this is the attitude that's being adopted, Mr. Bansal, what is a respectable, amicable way forward? Hindus want the site, Muslims say there is a give and take. There is no give here. Both times, Hindus want Kashi, Hindus want Mathura. What is in it for Muslims? The dialogue should be initiated. Definitely, I do agree with it, but not with the parties to the case. The dialogue should first be maintained, and the dialogue should first be initiated between their own community. They should first dialogue with the Sajid Rashidi. They should first dialogue with the Masjid Intijamiya Committee. They should first dialogue with the Darul Uloom Deoband, who are going to attack the country. You see, अभी जो इन्होंने गजवा हिंद का जो फतवा जारी किया है, वो गजवा हिंद के फतवे की अलग बात करेंगे। नहीं, आज ना मैं उनको बाबरी पर बात करने दूंगा, ना गजवा हिंद पर आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। नहीं, मैं विषयांतर नहीं कर रहा। हाँ, मैं गौरव जी, आई एम नॉट गोइंग टू एस्केप द टॉपिक। The question is that, my pointed question is that they should first initiate dialogue with their own community leaders.
दे आर ऑल गोइंग टू ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द कंट्री, और वो तनाव अलग अलग तरह के जो है ना हथकंडे अपना रहे हैं। और आप देखिए कि आपके पैनल में बैठा हुआ व्यक्ति वो सीधा सीधा डायलॉग को सीधा नकार रहा है। मैं कहता हूं ठीक है, आप भाई बात करने में क्या दिक्कत है, आप बात तो करो, कम से कम उसके सूफी साहब को पूछ लो कि क्या पता उनके दिमाग को कोई अच्छा आइडिया हो। पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन्होंने सीधा भेजा होगा, उसके बाद पूछो तो सही कम से कम। अरे मुझे मत बताओ भाई, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई डायलॉग, लेकिन उनके साथ तो डायलॉग कर लो कम से कम। और फिर हिंदू पक्ष ये भी कहता है रशीदी जी, अयोध्या के मसले में मुसलमानों ने कहा चलो एक मस्जिद गई, ढांचा गया बाबरी का और वहां पर मंदिर बना, उसके बाद शांत होंगे, लेकिन वो बातचीत के जरिए नहीं हुआ, वो अदालत के निर्णय पर हुआ। उसमें कोई बड़ा दिल किसी ने नहीं दिखाया, कोर्ट का आदेश आया। अगर यही बात है तो फिर मथुरा और काशी पर क्यों रुका जाए, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर बातचीत के जरिए सॉल्यूशन नहीं है तो फिर क्यों रुका जाए मथुरा और काशी पर भी। गौरव जी, अगर आपने शंकराचार्य को सुना हो, उन्होंने दो टोक कहा है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उन्होंने कहा है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, पहले बैठकर हमारे अंदर तय हुआ, हिंदू पक्षों में मुसलमान पक्षों में तय हुआ, फिर कोर्ट ने उसको सुनाया। ये शंकराचार्य का बयान बता रहा हूं मैं आपको। नहीं तो सुनिए, शंकराचार्य को शंकराचार्य जी बोलते हैं। सुन लीजिए, मौलाना शंकराचार्य को पूज्य शंकराचार्य जी बोलते हैं। अरे कम से कम उनको बोलने का तरीका जानिए। सही नहीं है, पूजनीय शंकराचार्य जी है। आप जी की बात अरे भैया समझिए बात को, उनकी तो बात ही नहीं मानी। तमीजी मत करिए। मनु मुंजाल की डिबेट में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, आपने मानी उनकी बात। यूट्यूब चैनल के साथ डिबेट कर रहे हो क्या? लेकिन उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अब आप फिर भटक रहे हैं मुद्दे से। आप उनको Is it a fact, Maulana Sajid Rashidi, you lack facts, sir. You lack facts on Mathura, you lack facts on Kashi, and that is why you are diverting the issue to some other issue each time. ये जो फालतू की बातों में जाते हैं, इनको रोकिए। और इसीलिए मैं बार बार आपको तथ्यों पर ला रहा हूं, बार बार। If Ayodhya happened through courts of law, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, कुछ है नहीं बोलने को। सुनिए मेरी बात सुनिए रशीदी साहब, डिबेट को मत डिरेल कीजिए, मेरी बात सुनिए। अगर मथुरा और काशी का भी आदेश अदालत से आता है तो फिर हिंदू मथुरा और काशी पर ही क्यों रुके? अगर सैकड़ों मंदिर तोड़े गए और मस्जिदें वहां बनाई गई तो फिर कोर्ट से एक श्रद्धा स्थल पर अब सुनिए जवाब। क्योंकि आप तो बातचीत के जरिए कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। सुनिए मेरा जवाब सुनिए। जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटी थी उसी दिन हमने आप फिर बाबरी पे चले गए। सर बाबरी इज अ फॉरगॉटन चैप्टर, बाबरी में कोर्ट का आदेश आ गया है। सुनिए जब हिंदू पक्ष में आएगा, हमें पता था कि विनोद बंसल जैसे लोग नहीं रुकेंगे बाबरी मस्जिद पर, नहीं रुकेंगे ज्ञानवापी पर, ये नफरत फैलाएंगे और मस्जिदें तोड़ेंगे। अब देखिए हल्द्वानी में क्या हुआ, आप फिर हल्द्वानी पहुंच गए। हल्द्वानी में मेहरौली में क्या हुआ, बिना नोटिस में मस्जिद। आप मथुरा और काशी, which brings me to the point। आप कह रहे हैं रुक जाएंगे ये लोग, रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं इनका। नहीं, क्योंकि पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। तो फिर यही तो मेरा प्रश्न है आपसे। खुले मंचों से ऐलान कर रहे हैं कि अगर ज्ञानवापी इन्होंने वापस नहीं किया तो बाबरी जैसा हाजिर होगा इसका। तो उसके खिलाफ तो कानूनी जो सीएम योगी कह रहे हैं कि अगर कौरव की तरह इन्होंने नहीं दिया तो महाभारत होगा। जब सीएम तक इस बात को कह रहे हैं तो फिर कहां रुकने वाले हैं? सीरियसली कहां रुकने वाले हैं? मौलाना साजिद रशीदी रुकने की आप तथ्यों पर नहीं बात कर रहे हैं, बट मनी मुंजाल आई वांट टू कम बैक टू दैट पॉइंट। मेरी बात को तो शुड द केस बी आर्ग्यूड? मुझे पता, चूंकि आप भी आस्था उसी में रखते हैं, मेरी बात नहीं मानोगे आप। नहीं, मैं तो हर पक्ष दुनिया के सामने रख रहा हूं। भारतवासी देख लें कि मौलाना साजिद रशीदी की क्या सोच है, विनोद बंसल जी की क्या सोच है और मनी मुंजाल जी की क्या सोच है। मैं तो हर सोच को सामने ला रहा हूं कि नहीं, आप मेरी हर आप भारत के मुसलमान होकर, आप भारत के मुसलमान होकर तो भारत विरोधी बात कर रहे हैं। आप भारत के मुसलमान होकर इस बात का प्रमाण है कि आप Mani Munjal, and I only want Mani Munjal's audio. Nobody is derailing this debate. Mani Munjal, should the case be argued only on merit
and decision awaited in courts of law, because no Maulana, nobody has a right to veto what courts of law say. 100% yes. The matter should go to the court, heard by the court. The evidences should be produced by both the parties, and in a justifiable manner, the judgment should be pronounced, as happened in the Ayodhya case. And I strongly believe that no alternative land should be provided to the losing party. The land solely vests with the deity. Once vested in the deity, forever vests with the deity. You produce the evidence, the court makes a decision. Don't we have trust in our constitutional setup? Don't we have trust in our judiciary? Why do we get so anxious when it comes to these matters? Okay. Are we questioning the independence of our own judiciary? We keep मौलाना साहब, अगर बातचीत के जरिए हल नहीं निकलता, अगर अदालत ने कहा कि काशी में मंदिर था या मथुरा पे मंदिर था, तो मनी मुंजाल हिंदू पक्ष की वकील ये कह रही हैं, फिर ऑल्टरनेट लैंड भी नहीं मिलना चाहिए किसी और धार्मिक स्थल के लिए। अगर गैर कानूनी तरीके से मस्जिद बनी तो ऑल्टरनेट लैंड भी नहीं मिलना चाहिए, ये उनका पक्ष है। आप उस पर क्या कहेंगे? हमने तो अयोध्या में भी अल्टरनेट लैंड नहीं मांगी, जबरदस्ती दे रहे हैं। हमने तो नहीं मांगी। अब वापस कर दीजिए। वापस है नहीं लीजिए अपनी वापस, कौन माना? अब मत लीजिए। मस्जिद हो ही नहीं सकती, वो मस्जिद हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि खैरात, आप ये कह रहे हैं कि खैरात की जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। बिल्कुल मस्जिद नहीं बन सकती। जिस मस्जिद में हिंदू का पैसा लगेगा वो मस्जिद नहीं बन सकती। लैंड पे वक्फ प्रॉपर्टी बन ही नहीं सकती। डिस्प्यूटेड लैंड पे कोई वक्फ प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। लेकिन वो इस्लाम आप नहीं मानेंगे। तो हम जानेंगे कहाँ मस्जिद बनेगी कहाँ नहीं बनेगी। नहीं, वो इस्लाम आप नहीं मानेंगे। हमारा पक्ष अलग। सुनिए, आप हमारे पक्ष को ना बताइए कि कहाँ मस्जिद बनेगी कहाँ नहीं बनेगी, वो हम बताएंगे कहाँ बनेगी। हमें सरकार के रहमो करम पर मस्जिद नहीं चाहिए। सरकार के रहमो करम पर कोई अल्टरनेट लैंड नहीं चाहिए हमें। अगर कोर्ट फैसला देगा हम उसको भी मानेंगे। अगर कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला देगा बाबरी मस्जिद की तरह, तो हम मानेंगे उसको। आपके खिलाफ नहीं दिया है, सच्चाई के साथ दिया है। सिर्फ सच्चाई के साथ नहीं, आस्था के बल पर फैसला हुआ है। तो आप क्या जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं? आप नहीं मानते? आस्था के बल पर। अरे माना है ना। अगर नहीं मानते, आप मुझे बताइए, अगर नहीं मानते तो मुसलमान उसका विरोध करते हैं ना। कौन विरोध कर रहा है उसका? सबने माना है ना। क्या कर रहे हैं? लेकिन संविधान मुझे ये इजाजत देता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी टीका टिप्पणी कर सकता हूँ। नहीं, आप टीका टिप्पणी जरूर कीजिए, लेकिन आप ना वो मेरा हक नहीं छीन सकते आप। सर, किसी का कोई हक नहीं छीन रहा है। लेकिन विनोद बंसल जी, an attempt was made to find an amicable solution in Ayodhya. The draft, और ये जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में घूम रहा है, उसमें यह कहा गया कि अगर मुसलमान एग्री करते हैं कि रिलोकेट कर दिया जाए मस्जिद का स्ट्रक्चर, तो अयोध्या में मथुरा और काशी की डिमांड नहीं होगी। क्या यह सच है कि मुस्लिम्स कह रहे हैं कि अयोध्या तो आपने ले लिया, अब आप कह रहे हैं मथुरा और काशी, फिर आप मथुरा और काशी पर भी नहीं रुकेंगे, फिर आप चले जाएंगे किसी और ढांचे पर या किसी और मस्जिद पर, किसी और जगह, और आप बोलेंगे हर जगह हमको मंदिर चाहिए, तो फिर यह मामला रुकेगा कब? विनोद बंसल जी, देखिए गौरव जी, बात यह है कि ये देश सच्चाई की तरफ, तथ्य और सत्य की तरफ बढ़ा है, और हमेशा से हम सत्य और तथ्य के पुजारी रहे हैं। और कोर्ट में जहां प्यार से झूठ बोलते हैं हमारे टीवी पर भी, देखिए फिर बीचों बोल गए, तो ये बड़ी बुरी इतने प्यार से झूठ बोलते हैं। सर, सच और झूठ का फैसला ना आप करते हैं ना मैं करता हूं, वो भारत की अदालत करती है। हम हर तथ्य को पब्लिक डोमेन में लाते हैं। अब आपसे निवेदन है, विनोद जी को अपना पक्ष रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगा और फिर मनी जी के पास जाऊंगा अगर समय अभी बचेगा। विनोद जी जल्दी से अपना मत रखिए। गौरव जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इंडिया टुडे जैसे चैनल पर, जो एक नेशनल चैनल है, उस पर कम से कम स्तरहीन लोगों को डिबेट के अंदर लाने से थोड़ा परहेज करिए आगे, और नहीं तो उनको टॉपिक बता दीजिए, या तो तथ्यों पर, ओनली ऑन फैक्ट्स। जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ओनली ऑन फैक्ट्स, नो पर्सनल अटैक्स ऑन आइदर गेस्ट। काइंडली। करेक्ट, थैंक यू। मैं कहता हूँ गौरव जी, देखिए बात यह है कि जब सच्चाई की बात आती है, तो ये तो देश सत्य और तथ्य का पुजारी है। हमें जहां लगेगा कि वो सच से बाहर आना चाहिए, उसको बाहर करेंगे, और डेफिनेटली जो कोर्ट निर्णय देगा, हम कोर्ट के निर्णय के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतांत्रिक मान्यताओं को मानते हैं। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, ये नहीं माने तो कोई बात नहीं, कोर्ट मानेगा, और जो कोर्ट जो प्रूव करेगा वो हम उसको सब मानेंगे, इनको भी मानना पड़ेगा। मौलाना साहब अग्रीड ऑन दैट पॉइंट कि बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। अब
कोर्ट में आप अपने पक्ष रखिए, हिंदू साइड अपने पक्ष रखेगा, जो अदालत का फैसला होगा वो सबको मान्य होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदालत का फैसला हमने पहले भी माना है, अब भी मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इनके झूठ को उजागर किया है। मनी मुंजाल, लीगली कैन रिक्लेमिंग टेम्पल्स बी रिस्ट्रिक्टेड only to Mathura and Kashi after Ayodhya, or if there is no amicable resolution to Mathura and Kashi, if justice comes only from courts, then are Hindus well within their rights to then show facts and seek justice from courts of law for other places of worship in different parts of Bharat? Yes, Gaurav ji, 100%. We are not only fighting for Kashi and Mathura, we are fighting for each and every single temple that was demolished, and we will fight for it, and multiple cases are going on. When we're talking about dialogue, there won't be dialogue for Kashi, Mathura or any other piece of land. When we talk about dialogue, it means give or take. We are not ready to give anything. We will take every single inch of land that was taken by us, that was vested in our deities. It will all go to court. We have time and again proved that pen is mightier than the sword, and this time also the pen will be mightier, and the courts will give the right judgment and the right decision. Okay, and we will track that story. We will track that story very very closely. मौलाना साहब चलिए, आप कह रहे हैं तो केवल 10 सेकंड, क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो देखिए, मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं जी, कि हम थाली में सजाकर मस्जिद नहीं देंगे। अगर आपको तोड़ना है बाबरी मस्जिद की तरह अभी 2 मिनट पहले ये बात हुई थी, अब आप फिर बरगलाने वाली बात कर रहे हैं। लिखा जाए, जैसे बाबरी मस्जिद लिखी गई, अभी दुनिया देखे, ओनली कोर्ट्स ऑफ लॉ, आपकी आस्था अदालत में है तो कोर्ट्स ऑफ लॉ, whatever judgment is given by courts of law has to be acceptable by all, not by choice, but that's the law of the land. We'll track that story very closely. The Sandesh Khali showdown has escalated. A BJP delegation visiting the area led by BJP MP Lokit Chatterjee was halted by the police in Kolkata. Chatterjee was detained. In Sandesh Khali, villagers attacked a TMC leader's house, damaged his motorcycle, alleging his involvement in cases of land grab. It's now been 50 days since TMC strongman Sheikh Shahjahan has yet to join investigations. The Bengal police have still not been able to nab him. Meanwhile, a special CBI PMLA court in Kolkata rejected his anticipatory bail plea. Sandesh Khali erupts again. Villagers up in arms over the failure of Bengal police in arresting local TMC strongman Shahjahan Sheikh, on the run for more than 50 days. Shahjahan Sheikh and his associates are accused of sexual assault and land grab. The angry locals attacked local TMC leader Ajit Maithi's house in Bedmujur near Sandesh Khali Island. They claimed Maithi is hand in glove with Shahjahan Sheikh. यहाँ पे कुछ देर पहले अजीत मैती जो तृणमूल के यहाँ के लोकल लीडर हैं, इनके घर पे वैंडलिज्म होता है। यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो बाइक में भी तोड़फोड़ हुआ है, और यहाँ पे जो दावा किया जा रहा है कि स्थानीयों ने ये किया, लेकिन इनका दावा है, जिनका घर है अजीत का, कि ये बीजेपी के गुंडों के द्वारा किया गया है। স্থানীয়দের যেটা দাবি হচ্ছে যে আপনি অনেকের জমি নিয়ে নিয়েছেন, সেটা কতটা সত্যি কতটা মিথ্যা? সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি বলেছি তদন্ত করে দেখা হোক, যদি তদন্তের সাপেক্ষে আমাকে প্রমাণিত করতে পারে আমি নিজের হাতে নিজে ফাঁসি নেব, নচেত আইন যে ব্যবস্থা নেবে সে আইনত ব্যবস্থা নিতে পারে। কোন জায়গায় আর্টিফিশিয়াল আগুন লাগিয়েছে, কোন জায়গায় মানুষ লাগিয়েছে, ঠিক আছে। আমরা এটা যে দূর চালাঘরে একটা লাগিয়ে পুরো আপনাদেরকেও বিজি করলো, আমাদের যে অফিসাররা আছে ওদেরকেও বিজি করলো, আর লোকের যেটা করলো কি লোককে প্ররোচনা দিয়ে কি ওদের তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। যারা এরকম করবে ওদের সবচেয়ে লাস্টে দেখা হবে। ফার্স্ট যেটা আছে আইন, আমাদের দায়িত্ব আছে আইন রক্ষা। More horror stories have come out. A TMC worker has accused Shibu Hazra, who is now in police custody, of defrauding her. বাড়িতে নিয়ে এসেছিল যারা অনলাইনে টাকা তুলে, সেই তাদেরকে নিয়ে এসে আমার বাড়িতে এসে, আমি অসুস্থ, আমি হার্টের রোগী, অসুস্থ, এসে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে টাকাটা তুলে নিয়ে
Meanwhile, a team of women BJP leaders led by MP Locket Chatterjee were blocked from visiting Sandesh Khali. Locket Chatterjee was detained by the police. Section 144 PCUD all valid in the around 500 meters of the following areas. 12 बजे से लिखा है संदेश खाली ड्यूटी ফুলগাছি यहाँ पे नहीं है আর এখানে কি আছে আপনি কেন বলছেন কেন আমাদের কাজ করছে আমাদের যেদিন संदेश खाली পৌঁছাই না। आज ही भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारे पश्चिम बंगाल की महिला पदाधिकारी, महिला सांसद और विधायक, उनको जाने से रोका गया। पश्चिम बंगाल की एसआईटी बजाय प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के कहीं न कहीं उन पे दबाव डालने का प्रयास कर रही है। The Enforcement Directorate raided residence of a businessman linked to Shah Jahan Sheikh in Howrah. Amidst the growing demand for justice, the Enforcement Directorate has issued fresh summons to absconding TMC leader Shah Jahan Sheikh, this time in connection with a land grab case. The ED had summoned him for questioning in ration scam earlier. Bureau Report, India Today. We'll track that story closely. That is all I have for you on India First this evening. Rahul Kanwal comes up next with the news track. Stay with us.